जिथे जाए वाले मेरा सतगुरु, जिथे जाए वाले मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। ਸ਼ਰੋਜ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਕੋਠੇ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਹੀਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭਟਕਣ ਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਵੜਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ। ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਬ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਂਕਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। हेलो
ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨਾਈਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਸਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਰ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਰ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ। वक्त उन्हीं का गुलाम होता है जो वक्त पे सवार होते हैं। वक्त उन्हीं का गुलाम होता है जो वक्त पे सवार होते हैं। पूजा उन्हीं आज़ादी का निग मान रहे हैं। अपने अंदर झात मार के देखो रात को सौन तो पहला कि साडे अंदर जिहड़ी सावां चल रही है ना, वो सावां साडे इन्हां अमर बलिदानियां दे सदके हैं। शायद चिल्ला चिल्ला के देशवासियों ने संदेश दे रही है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सारे अपने अंदर झात मारो कि क्या असी देश नूं संभालिया? क्या असी अज इन्हां शहीदां दी सोच ते पहरा दे रहे हैं? ये सोचने वाली गल है। आजादी के सब दशकों बाद भी इन्हां शहीदों की आवाज उन्हीं नीमां अंदर दफन होकर रह गई, क्योंकि आजादी तो बाद जिहड़े हुक्मरान इस देश पे आए उन्होंने इस देश को लुटिया, अपने घर भरे। जब बाढ़ ही साथियों खेत नूं खान लग पई तो उस खेत की राखी कोई नहीं कर सकता। जब देश का रक्षक ही बख्शक बन जाए तो देश कितना तरक्की करेगा। कहते हैं कि इंसान खिलाफे इंसान है, इंसान खिलाफे इंसान है, शैतान से शिकवा कौन करे, साहिल ही डबो दे कश्ती तो तूफान से शिकवा कौन करे, तूफान से शिकवा कौन करे। मायने ये नहीं रखता कि कितने लोग आए ने, मायने ये रखता कि जो लोग आए ने किस भावना आए। मोदी सी सोच लिया कि मेरे भाव चले ने, हर बंदा अपनी अपनी जगह बिजी है। की लोग इतना दिहाड़े मनाने की नॉन पोलिटिकल संस्था ताकि समाज एक चेतना पैदा करिए। देश की नींह जी बुनियाद है ना, ये शहीदों के बलिदान से टिकी हुई है। अगर नींह मजबूत होगी साथियों हाँ देश मजबूत होएगा। लेकिन आज देश की किस नूं चिंता है? साडी सोच है मैं मेरा घर मेरा परिवार, बाकी बाहर में जाए देश। और ये चीज़ां इन्हां नूं सोचियां होंदियां भरी जवानी च हसते हसते जिन्होंने अपने फांसी के फंदे चुम ले, क्या इन्हां दी मावां नहीं सी? क्या इन्हां दा परिवार नहीं सी? ये भी अंग्रेजों नाल समझौता करके आराम की जिंदगी बतीत कर सकती थी, लेकिन अपने जमीर को बेचना पैना सी। इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद क्यों उनके नाल ना लग्या। इन्हां दी वीर गाथा दर्शन जी ने तुहानूं बड़ी तरीके नाल दसदी है। और शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिस फांसी होने वाली सी उन्होंने मां विद्यावती
जेल च गई ते भगत सिंह दी हाल जब देखी तो मां विद्यावती की अखां विच हंझू वग पे। तो भगत सिंह ने कहा कि तू ना रोना, तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपनी मां विद्यावती ने शब्द कहे ते मां ने की कहा, अज मामा इत्थे बैठियां ने, नेरा जाना जाए पता लग जाए मेरा पुत्त पता नहीं कित्थे चला गया। एक उन्हां दी मामा भी सन ते भगत सिंह दी मां विद्यावती ने कहा कि भगत सिंह मैं इसलिए नहीं रो रही कि तेनू सवेरे फांसी होने वाली है, मैं इसलिए रो रही हां कि मैं तेरे वर्गे 4-5 भगत सिंह होर क्यों नहीं पैदा किते, जे वो भी होंदे वो भी मैं इस भारत देश तो कुर्बान कर देंदे। तानो मावा, तानो परिवार, जिन्हां दा देश हमेशा ऋणी रहेगा। रात को सोत वाले सिर्फ 10 मिनट अपने अखां बंद करके इन्हां शूरवीरां दे शहीदां दी तस्वीर अपने सामने रख के सोचो कि साडे अंदर जिहड़ी सावां चल रही हैं वो सावां इन्हां अमर बलिदानियां दियां ने। आपां इन्हां दा कर्जा नहीं चुका सकदे, लेकिन आपां जिथे बैठे अपना काम ईमानदारी नाल करदे होया इन्हां दी सोच ते पहरा दे सकदे हैं। अज इन्हां ने बलिदान दे के अपनी देशभक्ति दा सबूत दिता। आपां तां कहता कि ठेका ना लेना, देश नूं बचाया, आजादी दिलाई, बाकी साडा कोई फर्ज नहीं है। आपां सवेरे उठ के लुटना, गला कट्टना किसी दा, बस शाम नूं जेबां पा के घरे आना। ये फैसला तुसा करना कि आपां किवें इन्हां दी सोच ते पहरा दे सकदे हैं। और कोई डॉक्टर है ईमानदारी नाल अपने पेशेंट दा इलाज करदा, ओहदी देशभक्ति है। यूनिक देशभक्ति, बंदूक फड़ के बॉर्डर ते खड़ा होना देशभक्ति है। अगर कोई इंजीनियर है ईमानदारी नाल पुल दा सड़क दा निर्माण करता है, उसकी देशभक्ति है। तो कोई राजनेता है समर्पण की भावना नाल राजनीति करता है, राजनीति नूं धंधा नहीं समझदा, ओहदी देशभक्ति है। और कोई अध्यापक है ईमानदारी नाल बच्चों को शिक्षा देता है, ओहदी देशभक्ति है। सो मत ये सोचो कि देशभक्ति इन्हां दिखाई या फौजी दिखा रहे हैं। आपां जिथे इत्थे बैठे हैं अपना काम ईमानदारी नाल करदे होया अपनी देशभक्ति का सबूत दे सकते हैं। खासकर मातृ शक्ति बैठी है, किसी भी समाज नूं, किसी भी कुणबे नूं अगे ले जाने वास्ते एक मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। मां की कुखों शहीद आजम भगत सिंह पैदा हुए, मां की कुखों ही भगवान राम पैदा हुए, मां की कुखों ही चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए। इसलिए साडे शास्त्रां च मां की जिहड़ी पदवी है बहुत उच्ची है, इसकी महिमा कोई गुणगान नहीं कर सकता। इस मां का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। जिस मां ने 9 महीने अपनी लाल नूं कुख विच रख के इहो क्या होता कि जा पुत्त जद भी मेरे दुध का कर्ज चुकाउण दा समय आए उस काम नूं पहल दे देनी जिस काम लई तुसीं ये वर्दी पाई है, जिस काम लई तुसीं ये देशभक्ति का मेरे रंग दा बसंत लई मेरी तुहाडे सारे चरनां च बेनती है। कोई मकसद नहीं कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी होए, जिन्ने लोग आए मैं तुहानूं सल्यूट करना कि तुसीं आज़ादी देना, घुलाटियां नूं आज़ादी देना, परवानियां नूं अज याद करने लई इकट्ठे इकट्ठे होए हो। मेरी तुहाडे सारे चरनां च बेनती है कि सम्मान करो अपने शहीदां दा। आजादी ना दे रही थी, लेकिन उस आजादी की गरिमा नूं बहाल रखने लई अज भी साडे अमर योधे, साडे वीर सैनिक सरहदां की राखी करते हुए अपने बलिदान दे रहे हैं, ताकि असीं तुसीं चैन नाल सो सकीए। साडे यो जाग रहे हैं, चाहे -46 टेंपरेचर होवे, खून जमा देने वाली ठंड होवे, उत्थे भी साडे योधे खड़े ने दुश्मन नूं चुनौती देंदे होया कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। वो बॉर्डर और बर्फीले रेगिस्तान जिथे कोई मोबाइल नहीं चलता, कोई 2G 4G 5G नहीं चलता, उत्थे चलता है ते सर्द हवावां चलदियां ने, सीमा पार तो गोलियां चलदियां ने, उत्थे भी साडे फौजी वीर खड़े ने इन्हां आजादी दे परवानियां दी सोच ते पहरा दिंदे हुए। आजादी मिल गई, लेकिन उस आजादी की गरिमा नूं बहाल रखना सब कमां च उलझे होए ना बंदे, लेकिन सोच है, एक चेतना, एक अर्थ जगा रहे ने समाज नूं इन्हां देशभक्ति, इन्हां शहीदां दे नाल जोड़न लई। कहते हैं कि जिथे शहीदों को याद किया जाता ना, उस स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं। जो इंसान उस मिट्टी नाल तिलक करता है, जिस मिट्टी ते, जिस जगह ते इन्हां शहीदों को नमन किया जाता है, इन्हां शहीदों की वीर गाथावां गाई जांदियां ने, उस इंसान को तीर्थ स्थान जाने की लोड़ नहीं पैंदी, हरिद्वार जाने की लोड़ नहीं पैंदी, श्री हजूर साहब जाने की लोड़ नहीं पैंदी। और इंसान उस मिट्टी नाल तिलक करे ना, जिस मिट्टी के शहीदों की वीर गाथा गाई जाती है, उस इंसान को 100 कुंभ नहान का फल मिलता है। ये मैं नहीं, साडे शास्त्र, साडी गुरबाणी कहती है। साडा CRPF का जवान ड्यूटी दौरान ही अपना बलिदान दे गया, उसका भी भोग सी, लेकिन मेरे भरावां ने मैनूं याद किया सी, मैं इस आज़ादी के परवाने ने अपने नाल
ਵੱਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਮਰ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। मैं सोसाइटी वालों श्री भगवान दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते बेनती करदा कि वो आके दो शब्द कहन श्री भगवान दास जी गुरु जी साहब से। कितने चढ़े फांसी पे, कितने चढ़े फांसी पे, कितनों ने गोलियां खाई थी। कितने चढ़े फांसी पे, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब, क्या चरखे से आजादी आई थी, क्या चरखे से आजादी आई थी। मैं सम्मान करता हूँ गांधी वाली सिखों का, मैं सम्मान करता हूँ गांधी वाली सिखों का। मेरे सर पर कर्जा है चंद्रशेखर आजाद की चीखों का, मेरे सर पर कर्जा है चंद्रशेखर आजाद की चीखों का। कर्ज इस मिट्टी का, कर्ज इस मिट्टी का जिन्होंने अपनी शहादत से चुकाया है। कर्ज इस मिट्टी का जिन्होंने अपनी शहादत से चुकाया है। सलाम है उन वीरों को जिन्होंने भारत माता को आजाद कराया है, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराया है। जली बस्तियां बारी बारी, जली बस्तियां बारी बारी, छटकाई जिन्होंने चिंगारी। चढ़ गए पुण्य की बेदी, बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। साडे बहुत ही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अज शहीदी दिहाड़ा आ। इतिहास के पन्नियां दे विच चंद्रशेखर आजाद का जिहड़ा नाम है, जो उन्होंने खिताब मिलने चाहिए ही, जो NCERT चाहती तो उन्होंने किताबों में लिया सकती ही, सिलेबस में लिया सकती ही, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अज शहीद भगत सिंह वैलफेयर सोसाइटी ने जिहड़ा प्रोग्राम रखा चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिहाड़े मौके, मैं चंद्रशेखर आजाद के इतिहास बारे पूरी डिटेल दे विच दसांगा जिन्ने मेरे को शब्द है। चंद्रशेखर आजाद एक महाक्रांतिकारी है, अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली अंदोलन किया। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी ही। इन्हां दा जन्म मध्य प्रदेश की धरती पिंड बाबरा विखे होया। इन्हां दा बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी, माता का नाम जागरानी तिवारी, पिता का नाम सीताराम तिवारी। तिवारी तो आजाद नाम किवें पिया इस बारे मैं दसांगा। फिर उस तो बाद किदां जिहड़ा 1919 का जलियांवाले साका होया, उहदे दौरान इन्होंने मूवमेंट किया। उस तो बाद 1924 विच हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन के सरगर्म मैंबर बने। राम प्रसाद बिस्मिल की जिहड़ी सज्जी बांह ही चंद्रशेखर आजाद। उस तो बाद 1928 विच हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन के कमांडर इन चीफ बने। भगत सिंह की भी सज्जी बांह ही चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का हिंदुस्तान के जिहड़े मूवमेंट है उहदे विच एक अहम रोल है जिन्हों कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक महान क्रांतिकारी जिन्हां दा नारा ही चिंगारी आज़ादी की, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है। इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। चंद्रशेखर आजाद का जिहड़ा नारा ही बचपन में जिहड़ा इहदा जन्म होया एक बैकवर्ड एरिए में होया, लेकिन इहदा जिहड़ा दिमाग ही इहदी जिहड़ी तर्क शक्ति ही बड़ी उच्च कोटि की ही।
बड़ा सातर दिमाग का जिहड़ा चंद्र शेखर आजाद बचपन च ही तीर कमान ते होर जिहड़ी ज्ञान विद्या जिहड़ी आ अपने आदिवासी खेतर विचों जिहड़ी हासिल कीती ते अपने वाराणसी दे विच विद्यापीठ च इहदे पिता ने इन्हां नूं पढ़न लई भेजिया। उत्थे यह संस्कृत इन्हां ने पढ़ी। उन्हां दिनां दे विच 1919 ईस्वी दे विच जनरल डायर ने जलियांवाले बाग विच गोलियां चला के हज़ारां लोगों का कतल कर दिता। कईयां ने अपनी जानां बचाने दे लई खूह दे विच साला मार दित्तियां। लेकिन यह जिहड़ा हत्या कांड अंग्रेज़ों द्वारा किया गया, हिंदुस्तान की पूरे संसार दे विच इहनूं निंदिया गया। हिंदुस्तान के कोने कोने दे विच इहदा विरोध किया गया। जदों बनारस दीयां गलियां दे विचों जिहड़े क्रांतिकारी अंदोलनकारी जा रहे ही, उदों चंद्र शेखर आजाद की जिहड़ी उम्र ही 13 साल ही। चंद्र शेखर आजाद क्या घोड़ियां की सज़ा तो उसदे कख भी है नहीं, लेकिन आज़ादी का सपना तो किते अगे ही चंद्र शेखर आजाद के जिगर विच दिल दे विच कि मैं देश नूं आज़ाद कराना। जदों 15 घोड़ियां की सज़ा हुई, जदों पहला घोड़ा मारिया उन्हें पूरी जोर नाल, ते चंद्र शेखर आजाद ने कहा वंदे मातरम। जदों दूजा घोड़ा मारिया कहता भारत माता की जय। जदों तीसरा घोड़ा मारिया चंद्र शेखर आजाद कहता इनकलाब जिंदाबाद। जदों चौथा घोड़ा मारिया महात्मा गांधी की जय। 15 घोड़े बजे, पर इन्ना पक्का मुंडा चंद्र शेखर आजाद जी की फोटो लगी हुई है, अखां चों एक कथरू नहीं वगया। फिर जज के सामने पेश किया। जज कहता बेटा तेनों भारत माता की सौं दस, तेरा नाम की है, तेरे पिता का नाम की है। कहता जज साहब हुण मैं तुहानूं सब कुछ दसांगा। मैं पहला इस करके नहीं तुहानूं दसिया कि मेरे नाल जिहड़े वड्डे मेरे स्टूडेंट ही, उनका कहना ही कि निक्का जिहा हैगा आ, इह एक चपेट नहीं झलनी। कहता मैं उन्होंने दसना चाहता ही कि मैं निक्का नहीं, मेरे दिल च आज़ादी का सपना है। लिखो लिखो अपनी डायरी जज साहब, मैं तुहानूं लिखाना। उदों जिहड़ा जज ही उन्होंने उर्दू भाषा ज़्यादा चलती रही है। जनाबे मैं कौमी परवाना हूँ, इस जलती हुई समा पर आज हुआ दीवाना हूँ। करके दमन गोरों का दम लूं, इतना मैं मर्दाना हूँ। ऋषि दयानंद और सरदानंद का जाना पहचाना हूँ मैं, क्या पूछो जनाबे वाली बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं। उस तो बाद जज ने क्वेश्चन किया कि तेरे पिता का की नाम है। कहता कोई गल नहीं पिता, मैं तेनों अपने पिता का नाम, बाबे का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, उस तो भी दादे परदादे का नाम दसांगा। लिखो राम कृष्ण दादा भीष्म। राम कृष्ण दादा भीष्म उस अर्जुन की औलाद हूँ मैं, क्या पूछो जनाबे वाली बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं, बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं। और 13 साल के बच्चे ने जज नूं घुमा के रख दिता, ते हुण ते 20-20 साल के जिहड़े पोते हो जांदे आ, कोई गल नहीं हुंदी। ते उस समय चंद्र शेखर आजाद की जिहड़ी तस्वीर लगी हुई है। इन्हां ने जज नूं जिहड़े क्वेश्चनां दे विच जदों जवाब दिता कि मैं मेरी माँ का नाम आज़ादी, उसका बेटा आज़ाद हूँ मैं, उदों तो जिहड़ा चंद्र शेखर का नाम तिवारी तो चंद्र शेखर तिवारी तो पिया चंद्र शेखर आजाद। चंद्र शेखर आजाद जदों अपने नाम मिलन बर्तन अंदोलन चल रहा है 1920 उन्होंने भाग लिया। 1922 जदों असफल हो गया तो चंद्र शेखर आजाद का मन बड़ा खट्टा है। साढ़े सामने आले चक तो सरपंच चंचल सिंह आया, इन्हों का तह दिलों धन्यवाद किया जाता है। नाल इन्हों के साथी भी आए हैं, उन्होंने भी तह दिलों धन्यवाद किया। कृपा करके इन्हों और उनके स्थान बिठाया जाए। देश में बर्बादी है, लाने अब आजादी है। नहीं ऐप गीत हो गया। बिच जे लाहौर दी दे, बिच जे लाहौर दी दे, जद मां मुलाकात नूं आई। बिच जे लाहौर दी दे, जद मां मुलाकात नूं आई। उस दे लाल भगत सिंह ने हसदियां हसदियां गल सुनाई।
कल दिन चढ़दे मां तेरा लाल नहीं तिहाना। गल सुन मेरी माए नी, गल सुन मेरी अम्मिए नी, तू मेरी लाश लैन ना आवी, तू मेरी लाश लैन ना आवी। जेलां दियां सीखां तो जेलां दियां सीखां तो जाना इनकलाब ना डकिया, हथ घड़ियां बेड़ियां तो जाना ना जो बीड़ा चुकिया। मेरी लाश मेरी लाश मेरी राख कंडा देनी, मेरी राख कंडा देनी। भारत दे कण कण चों पैदा होन भगत सिंह लखां। गल सुन मेरी माए नी, गल सुन मेरी अम्मिए नी, मेरी लाश लैन ना आवी, मेरी लाश लैन ना आवी। साडे विच अपने मीडिया दे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਸਰਪੰਚ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਬੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕ ਬਿਨਾਂ ਢਾਲ। ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕ ਬਿਨਾਂ ਢਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਜੋ ਲੜੇ ਉਹ ਮਰੇ, ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਡਰੇ ਨਾ ਲੜੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਕਈ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆਓ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਂਕਾ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਸਤ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇਖੇ ਇਧਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਲ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੇ ਇਧਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰ ਦੋ ਸਟਿਕ। ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੰਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਮਾਰ ਦੇ ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ रमा जी आगे आ जाओ। ਓਕੇ। रमा रानी जी पिंदर पिंदर जी आगे आन। आंटी तुम भी देखो आ सामने। जाओ जी, आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सीतू जी क्या किया खत्म। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਆ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ओके। आए थे आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी आ जाओ। ਆਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਮਪਾਲ ਕਿਹੜਾ ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ हो चलो हाँ जो भी है दे जाओ यार। सीतू जी हो गए। ठीक है जी। जाओ माता जी जाओ जाओ। ਠੀਕ ਹੈ। आगे सरदार सिंह जी, आगे नथाराम जी, ठीक है जी। नथाराम जी आगे आन। श्री ठीक है जी। सोन लाल हो गए। आगे बलविंदर कुमार जी आ जान। मानयोग बलविंदर कुमार जी। गोरखू है की गोरखू, श्रीमान गोरखू जी। ठीक है जी। जी धर्मपाल। ठीक है जी। हो गया। ठीक है जी। जाओ जी। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆ ਆਜੋ। ठीक है। सुनील कुमार लिखे ना। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ प्रदीप कुमार जी हो गए। ਰੋਕ ਦੇ ਜੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ आगे मनु लाल जी, मोह लाल जी आगे जी। दे दो दे दो। एम मोह लाल हो दो। ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਧਰ ਰਤਨਾ ਮਾੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ओके। ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਲਗਾ ਚਾਚਾ सुभाष सुभाष है की है सुभाष जी आगे आ जान। सुभाष जी जोगिंदरपाल दे करो आगे आ जान। सुभाष माता जी कंबल ले लो लो जी। आगे विक्की ठीक है जी। विक्की जी कृपा करके विक्की जी आगे आ जान। सैंपे दी डड्डी। आगे लक्की जी
ਲੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮਰ ਜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਇਨ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਜਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ। ਠੀਕ।